جلسہ اس کو کہتے ہیں جی. یہاں 1919 میں غالباً یہ ڈوگروں نے گلگت کی زمینوں کی بندوبست کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے ساری زمینوں کی ملکیت کس کے پاس تھی؟ راجوں کے پاس تھی. 2018 نے آپ کی ٹوٹل گلگت بلتستان کی زمینیں جو ہے وہ آپ کی پروونشل سبجیکٹ بنا دیا. ہمارے جو ساتھی تھے اسمبلی کے ممبران جو تھے یا ان کو کہیں سے ڈکٹیٹ کیا گیا. ہمارا آخر جنہوں نے پارٹیاں چھوڑنی تھی انہوں نے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اسمبلی سے ہم اس کو پاس نہیں کر سکے. ہم گلگت والوں اور نومل والوں کا تنازع ہے نا جی، کورٹ میں ہے نا جی، 2-3 لوگ قتل بھی ہو گئے ہیں نا جی. جو بنجر زمین ہے اس کا 30% سے 20% نیگوشیشن ہو کے 20% آ گیا تھا. اسمبلی نے جو کابینہ نے پاس کیا تھا 30% زمین جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے گی. یہ 1 انچ زمین نہیں ہے تو گورنمنٹ کس کی ہے؟ پھر اس گورنمنٹ کو اپنی گورنمنٹ کیسے کہتے ہو؟ پوری چلمش میں ہم نے کون سی زمین دی ہے ہمارے دور میں؟ یہ جو کیو کو زمین دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں دی گئی ہے. جو فارمولا وہ بنائیں گے اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے کورٹ آف لا میں جانا ہے، اسمبلی کے باہر دھرنا دینا. میں ساتھ ہوں. کسی قبضہ مافیا کے ساتھ تو ہم ساتھ نہیں دے سکتے نا. چچا کلیکٹر بھی رہا ہے، میرا چچا یہاں سیٹلمنٹ افسر بھی رہا ہے گلگت کا. اس وقت 1 درخواست پہ زمینیں ملتی تھی. 1 مرلہ زمین میرے خاندان نے الحمدللہ ہم نے نہیں لی. 1 مرلہ، بلکہ ہمیں ایک زمین الاٹ ہوئی تھی وہ بھی کسی اور نے لی، اٹھائی قبضے کے. ہم نے کہا غریب آدمی چھوڑ. یہ ایکٹ کے اندر ترمیم عوامی ایکشن کمیٹی نہیں کر سکتی ہے، انجمن تاجران نہیں کر سکتے، حفیظ الرحمان بیٹھ کے نہیں کر سکتا، مسلم لیگ بیٹھ کے نہیں کر سکتی. لینڈ ریونیو ایکٹ کا جو ترمیم ہے وہ آپ کی اسمبلی کر سکتی ہے. اس میں سی این اے کے کمانڈر کو بھی پچھلے جمعے کو میں نے گزارش کی ہے. میں نے کہا یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. 3 ایشوز، زمین کے، گندم کا، ٹیکس کے ایشو. قوم کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہا جاتا تو میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوں. آج گورنمنٹ آف پاکستان کی گلگت بلتستان میں کوئی لینڈ نہیں ہے. آج ایک ڈی سی کو حکم دیا جاتا ہے فلاں جگہ تجاوزات ہو رہے ہیں جاؤ، تو وہ جاتا ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت. میں درگاہ میں حاضریاں دینے کے بجائے صبح دوپہر شام باہر جاتا ہے، لندن سے واپس آتا ہے، سیدھا اس کی ٹانگ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WTV میں وجاہت علی. اس وقت میں موجود ہوں سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کے صاحب کے ساتھ. یقیناً اس وقت گلگت بلتستان کے اندر ایک ایشو چل رہا ہے خالصہ سرکار کے نام سے. اس حوالے سے جاننے چاہتے ہیں کیونکہ سابقہ 5 سال حکومت کی ہے قاری صاحب نے. قاری صاحب بتائیں کہ یہ کیا ایشو ہے خالصہ سرکار کا؟ آپ کے دور میں ایک لینڈ ریفارم ایکٹ کے لیے کمیٹی بنی، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا اور یہ ایشو جوں کا تو رہا. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور اس پہ میں کسی دن تفصیلی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن صرف اتنا یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جو لینڈ ریفارم کمیشن ہم نے جو بنایا تھا جو پچھلی گورنمنٹ میں، وہ اس لیے کہ یہ اپنے ناظرین کو یہ بتانے کے لیے بہت ضروری ہے، سننے والوں کے لیے، کہ خالصہ اس کو کہتے ہیں جی. یہاں 1919 میں غالباً یہ ڈوگروں نے گلگت کی زمینوں کی بندوبست کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے ساری زمینوں کی ملکیت کس کے پاس تھی؟ راجوں کے پاس تھی، عوام کے پاس تو نہیں تھی. یہی جو اس وقت ڈوگروں نے جو بندوبست کیا، اس بندوبست کے نتیجے میں راجوں کی زمین طے ہو گئی یہ ہے اور پبلک کی زمین ان کو ملکیت دی گئی. اس کے بعد کوئی نیا سیٹلمنٹ گلگت بلتستان میں 1919 ہے یا 1920 ہے، اس کے بعد سے لے کے 2004 میں ایک اپڈیٹ بندوبست کیا گیا، لیکن وہ بھی بڑا متنازع رہا. لینڈ ریونیو ایکٹ کہتا ہے کہ ہر 2 سال بعد 4 سال بعد آپ نیا بندوبست کریں گے، لیکن یہاں نہیں ہوا. اب جس کی وجہ سے یہ نام خالصہ ہے. اب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، ان سارے صوبوں میں انگریزوں کے زمانے کی جو زمینوں کا جو قوانین تھے اس کو انہوں نے اپنے صوبوں میں ریفارم کیا. 2018 سے پہلے یہ جو بینجر لینڈ تھی یا جن کو خالصہ لینڈ کہا جاتا ہے عرف میں، وہ لینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت کہلائی جاتی تھی. اس کا کوئی بھی فیصلہ، اس کے ٹائٹل کا کوئی بھی فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی تھی، یعنی کشمیر افیئرز منسٹری، پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی تھی. یہ ہماری گورنمنٹ کو الحمدللہ نواز شریف صاحب کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے جب 2018 کا آرڈر بنا، بہت اسی جو روڈ میں جلسے جلوس ہوتے رہے، اس 2018 نے آپ کی ٹوٹل گلگت بلتستان کی زمینیں جو ہے وہ آپ کی پروونشل سبجیکٹ بنا دیا. آپ کی اسمبلی کا یہ اب اختیار ہے کہ اس لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر جو بھی ترمیم کر کے وہ ساری زمینیں لوگوں کو دینا چاہتی ہے تو دے دے. وہ اس میں آپ اس کا نام چینج کرنا ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہم نے جب ہم نے شروعات کی، ایک تو اس میں ریزسٹنس تھی. ہم نے 10 کے 10 ضلع ہے، سیٹل ان سیٹل، 6 ضلع آپ کے سیٹل ہیں، 4 ضلع آپ کے ان سیٹل ہیں. ان سارے ضلعوں میں ہمارا لینڈ ریفارم کمیشن گیا، نمبرداروں سے، ممبروں سے، الیکٹیبل سے، میڈیا سے انٹریکشن کر کے، پھر کورٹس کے ساتھ بہت سی لٹیگیشن وہاں پہ بھی تھی. تو ہماری کابینہ نے تو اس کو اپروو کیا. اس دوران یہاں دھرنے، جلسے، جلوس، مطلب ہم نے کہا یار سوچے سمجھے طریقے سے بات کریں، آپ آئیں اس مسئلے کو حل کرتے. اس کے بجائے ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے. جلسے جلوس تو الیکشن ایئر تھا، ماحول باہر خراب ہو گیا. ہمارے جو ساتھی تھے اسمبلی کے ممبران جو تھے یا ان کو کہیں سے ڈکٹیٹ کیا گیا. ہمارا آخر جنہوں نے پارٹیاں چھوڑنی تھی انہوں نے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اسمبلی سے ہم اس کو پاس نہیں کر سکے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ حل کیا ہے.
मैं नहीं समझता, मैं हर सियासी जमात से आजकल फोन पे बात कर रहा हूँ, बैठ के बात कर रहा हूँ, उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए यार हमारा ये सरजमीन है, हमने यहाँ जीना है मरना है, 3 इश्यूज हल नहीं करेंगे तो 10 साल बाद भी यही धरने यही जुलूस होंगे और हमारे मुतालबे ये होंगे। एक गंदम का इशू हल करना है, दूसरा टैक्स का मसला सेटल करना है, तीसरा आपका जो ये जमीनों का मामला हल करना है। अगर ये 3 इश्यूज हल नहीं होते हैं तो हर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद कौम इन्हीं नारों के ऊपर फंसी होगी। सोल्यूशन क्या है? मेरे पास मैं समझता हूँ कि अगर इसमें वसी तर डायलॉग की जरूरत है, कुछ नासमझियाँ हैं, कुछ गलतफहमियाँ हैं। मिसाल के तौर पर हमने लैंड रिफॉर्म कमीशन में जो सोल्यूशन दिया था वो ये था कि जहाँ पे भी कोई बंजर लैंड पड़ी हुई है, बैरून लैंड, अनसेटल जिलों में बैरून लैंड कहा जाता है, सेटल जिलों में उसको खालसा लैंड कहा जाता है, ठीक है। उसका सोल्यूशन ये था कि उसमें से 30, अब वो जमीनें ऐसी हैं, मैं आपको छोटी सी मिसाल, इधर पीछे चिलमचदार है ना जी, हम गिलगित वालों और नोमल वालों का तनाजा है ना जी, कोर्ट में है ना जी, 2-3 लोग कत्ल भी हो गए हैं ना जी, आज भी वो सिविल कोर्ट में ही है, आज भी उसका कागज सरकार के पास है, जो सरकार कहती है हमारा है, हम कह रहे हैं हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा, यही है ना इशू। अब मुझे ये बताएं कि इस तरह के इश्यूज का आप बैठ के कैसे बंदरबांट में और आप कैसे कर सकते हैं, किसी फोरम के बगैर, किसी कोर्ट के बगैर, किसी असेंबली के बगैर बाहर हक दिया जा सकता है लोगों को। अब उसमें हाल ये निकाला गया था कि मिनावर और चिलमिश जैसे इलाके जहां आपने गवर्नमेंट ने ओवरऑल उसकी जो जमीन है उस एरिया की, उसकी 30% से ज्यादा आपने गवर्नमेंट ने जमीन ले ली है, तो वहां से मजीद गवर्नमेंट कोई जमीन नहीं लेगी। एक तो ये था उसके अंदर। दूसरा ये था कि इस तरह की जो जमीन है, अब यानी इन दोनों इलाकों से गवर्नमेंट के पास मजीद जमीन नहीं जानी थी। हमने नोमल वालों को और गिलगित वालों को बुलाया, इनको हमने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं कि यहाँ से मजीद गवर्नमेंट जमीन नहीं लेगी, जो जमीन है बकाया 1400 कनाल है, 2000 कनाल है, 3000 कनाल है, आप और गिलगित वाले आपस में सेटल करो, आपस में सेटल करो, हम जो है वो आपको कानून बना के देते हैं। लेकिन इनकी सेटलमेंट नहीं हो सकी आपस में, इन्होंने किसी ने कहा मानते ही नहीं आपको, ये इशू आ गया। अब इसी तरीके से ओवरऑल इसका ये था कि जो बंजर जमीन है उसका 30% से 20% नेगोशिएशन हो के 20% आ गया था, असेंबली ने जो काबीना ने पास किया था 30%। 30% जमीन जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी किसी भी बंजर एरिया से, और वहां पे गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, जो उस कम्युनिटी के लिए कोई चीज बनानी है वो बनाएगी। वहां पे रेस्ट हाउसेज या होटल या ये इस तरह की चीज नहीं होगी। रेस्ट ऑफ 70% जो जमीन है वो जमीन जिनके घास चराई के हुकूक हैं, जिसके उस इलाके में घास चराई के हुकूक हैं, उनमें तकसीम की जाएगी। ये हमारा फार्मूला था, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि 70 साल में जो बंजर जमीन है, आज भी बंजर है, वो आबाद हो जाती, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट लगाती, पब्लिक के लिए बेनिफिट्स हो जाता। अब इसके अलावा मेरे नजदीक कोई हल नहीं। अगर आप यहाँ सेटल, कुछ हजरात हमारे, मैं कुछ दोस्तों की बात सुनता हूँ तो वो कहते हैं गवर्नमेंट की 1 इंच जमीन नहीं है, तो गवर्नमेंट किसकी है फिर इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट कैसे कहते हो? हमारे एक पार्टी है हमारे सिंध में, उनकी गवर्नमेंट है हमारे साथियों की, वो कहते हैं जी यहाँ पे 1 इंच गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, तो फिर सिंध में लाखों एकड़ गवर्नमेंट की कहाँ से आ गई? वो सिंध गवर्नमेंट की, वो मलिक रियाज को देने के लिए आपके पास जो है वो लाखों एकड़ थी, वो गवर्नमेंट की लैंड है ना। हाँ, ये खालसा लैंड का टाइटल खत्म होना चाहिए, पब्लिक लैंड होनी चाहिए और गवर्नमेंट लैंड होनी चाहिए, ये टाइटल होना चाहिए इसका, और ये लैंड रिफॉर्म कमीशन में तजवीज़ किया गया है। मुझे ये बताएं, आप गिलगित बल्तिस्तान में हमने जो इफाद के लिए जो सर्वे करवाया था उसके हिसाब से 40,000 कनाल जमीन आपको दस्तयाब है लबे दरिया। 40,000, 40 नहीं, सारी 40,000 कह रहा हूं, 40,000 एकड़, 40,000 एकड़ सिकरदू शिगर से लेके गुलखमुली तक, 3,20,000 यानी 3,20,000 कनाल आपके पास दस्तयाब है इस वक्त। अब उसमें से हमने 8 लाख कनाल का जो है वो गालिबन इफाद के साथ मुआहदा किया था, जिसमें से 4 लाख कनाल जमीन में चैनल पहुंच चुका है, सड़क पहुंच चुकी है, वहाँ कई जमीनों में फसल लगाई गई है, जिसमें गिजर है, आपका अस्तौर है, ध्यामर है, घांचे। ये आप जाके कैमरा जाके देख लें, वहाँ पे 7.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। अब मसले का काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है ये। अब आप देखें, वो 19 अरब का नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था इफाद का, 7 अरब हमने खर्च किए, 4 लाख कनाल जमीन आबाद की। अब उन जमीनों का टाइटल शिफ्ट करना है। उस जमीनों में क्या तय था कि गवर्नमेंट ने जमीनें दी थी लोगों को, किसान अंजुमनों को, कि आप 10% जो है वो क्या कहते हैं चैनल पहुंचाएंगे, सब कुछ होगा गवर्नमेंट, उसके बाद 3 साल मुसलसल आप वहां कोई फसल काश करेंगे। अच्छा, इसमें मेरी ये बात पूरी होने दें, मेरी ये बात पूरी होने दें, 1 मिनट मेरी बात। तो वो ये था कि अगर आप 3 साल मुसलसल फसल उगाते हैं गुजरात साहब, तो उसके बाद आपको वो जमीन के मालिकाना हुकूक शिफ्ट होने हैं, ठीक है। वो अभी तक, क्योंकि यही लैंड रिफॉर्म कमीशन के अंदर ये मसला भी फंसा हुआ है, बकाया जिले जो काबीना ने फैसला किया था, नगर, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, शिगर, इसको भी शामिल किया जाए, खरमंग वगैरह, वो अभी तक शामिल नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए कि वो 11 अरब रुपए आज भी इफाद में पड़े हुए हैं। 2 अरब रुपए की रिलीज है, हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई, फौरन हमारे लगाए हुए जो टीम थी इफाद की, जो उस वक्त की हरारकी, वो जो नून लीग के फारिग कर दिया गया। आज तीसरा साल है, इतने अहम प्रोजेक्ट की हरारकी आपसे नहीं सेटल हो सकी। अच्छा,
मौजूदा हुकूमत जो है आप पे बड़ा एलिगेशन लगा रही है कि आपके दौर में ये खालिसा सरकार के नाम पे बंदरबाट की गई, आप ये एलिगेशन लगा रहा है। अब अवाम की तरफ से, बास तंजीमों की तरफ से भी ये एलिगेशन लगा रहा है कि कारी साहब के दौर में ये सारी चीज़ें हुई, शिलमेश दास हो गया, मकबून दास हो गया, कोनो दास हो गया, यहाँ पे हक मारा गया, इस पे क्या कहेंगे? मेरे दौर में देखें यही ज़मीन हमने ली है, इनको गवर्नमेंट की लैंड थी, यहाँ किसी का इसके लिए कम्युनिटी को अनबोर्ड किया, कशरोट मजीन माला अमपरी की कमेटी ने ताउन किया, हमने इनसे 80 लाख रुपया टोकन लिया, लीज पे दिया ये ज़मीन। मुझे बताएं पूरे चिलमिश में हमने कौन सी ज़मीन दी है हमारे दौर में? ये जो केयू को ज़मीन दी गई है पीपल्स पार्टी के ज़माने में दी गई है, हमारे ज़माने में नहीं दी गई है। ये टेक्निकल कॉलेज जो बना है वहां पे वो पीपल्स पार्टी के ज़माने का एक अधूरा मंसूबा था जिसको हमने आके कंप्लीट किया, ज़मीन हमने नहीं दी है। मिनावर में मुझे बताएं कि हमने कौन सी ज़मीन दी? हाँ, एक ज़मीन थी जो एक इदारे को अलाट हो गई, उससे कुछ स्पार्को को दी, स्पार्को हम लेके आए जीबी में, इसलिए कि आपकी स्ट्राइक मॉनिटरिंग की जरूरत थी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। हमने कहीं पे भी कोई जमीन दी थी तो मुझे वो दिखाया ना। हाँ, हमने कुछ ऐसे मंसूबे दिए, जैसे कैंसर हॉस्पिटल वाली जमीन थी वो पहले से उसके नाम पे थी, हमने वो कंप्लीट कर दिया। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की जमीन थी, उस पर किसी का डिस्प्यूट नहीं था, वो गवर्नमेंट की लैंड थी, हमने उसके ऊपर उसको बना दिया है। ये शहीद सफर रहमान हॉस्पिटल बनाया है, हमने एक फॉरेन एनजीओ से ये जमीन खरीदी, ये जो क्या कहते हैं जो आई हॉस्पिटल वालों से, हमने उनसे ये खरीदी है। ये इल्जाम लगाना आसान है। देखिए, मैं हकीकत की रोशनी में बात करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, हमें यह तय करना है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की गवर्नमेंट है या नहीं है। खालिद खुर्शीद या हफीजुर रहमान या मेदिशा की बात नहीं है। अगर इस पे आप लोगों को बैठना पड़ेगा तो क्या आप आवाम का साथ देंगे या फिर वही 80 और 100 वाले फार्मूले पे, 80 और 20 वाले फार्मूले पे चले जाएंगे? देखिए, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं, मैं लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलता, मैं कभी झूठे नारों पे सियासत नहीं करता, ना मेरी जमात का ये उसूल है। मुझे ये बताएं, मिल फरज आज भी मैं करता हूँ, चिलमिश के वाले से गिलगित और नोमल वाले आपस में इत्तेफाक करें, आपस में तकसीम करें, मैं दोनों के साथ खड़ा हूं। जो फार्मूला वो बनाएंगे उसको अमल दरामद करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाना, असेंबली के बाहर धरना देना, मैं साथ हूं। किसी कब्जा माफिया के साथ तो हम साथ नहीं दे सकते ना। इसी तरह मिनावर है, मिनावर के तमाम स्टेक होल्डर बैठ के जो बची जमीन है हमने तो तय किया कि भाई अब यहां से कोई जमीन गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। अब मिनावर के जितने भी खालसा लैंड है या सरकारी लैंड कह लें या उसको बैरून लैंड कह लें या लोगों की चरागाह कह लें, उसके हवाले से मिनावर के कुल्ली लोग मिल के मुत्तहिद होकर फैसला करें कि भाई इनकी तकसीमात ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, इशू आता है तकसीमात में वजाद साहब कि मैं बासर हूं जी, मैंने 50 कनाल जमीन पर कब्जा किया, मैं खबरदार बन के जो कहता हूं जी हमारी जमीन है। भाई मैं खबरदार हूं तो इसी तरीके से एक वहां ग्रेड वन भी एक खबरदार है, उसको भी उतनी मिलनी चाहिए ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर जो सियासी लोग हैं उनमें से चीफ मिनिस्टर भी रहा, पार्टी के सदर भी रहा, अपोजिशन में भी रहा, वजीर भी रहा हूं। मेरा चाचा कलेक्टर भी रहा है, मेरा चाचा यहाँ सेटलमेंट अफसर भी रहा है गिलगित का। उस वक्त एक दरखास्त पे जमीनें मिलती थी, एक मरला जमीन मेरे खानदान ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं ली, एक मरला, बल्कि हमें एक जमीन अलाट हुई थी वो भी किसी और ने ली, उठाई कब्जे के, हमने कहा गरीब आदमी छोड़ दो। ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? इस तरह हल नहीं होगा, इसका हल असेंबली में है, टोटल गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली में है। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर तरमीम अवामी एक्शन कमेटी नहीं कर सकती है, अंजुमन ताजरान नहीं कर सकते, हफीजुर रहमान बैठ के नहीं कर सकता, मुस्लिम लीग बैठ के नहीं कर सकती। लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो तरमीम है वो आपकी असेंबली कर सकती अच्छा, है। इसमें एक नोटिफिकेशन हुआ है, 3 वज़रा रखे हैं, बाकी ब्यूरोक्रेसी को रख के एक कमेटी अभी रिसेंटली कल नहीं परसों ये नोटिफिकेशन हुआ है। क्या समझते हैं कि अपोजिशन से किसी को नहीं लिया गया, क्या ये कमेटी फैसला कर पाएगी? देखिए, वो मुझे कल एक बहुत जिम्मेदार सरकारी अफसर ने मुझे बताया कि ये कमेटी तो गुज़श्ते 6 महीने से मीटिंग नहीं कर रही है, ये बैठ ही नहीं रहे हैं, इनकी दिलचस्पी ही नहीं है, वो एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। ये संजीदा मामला है। मैंने एफसीएनए के कमांडर को भी पिछले जुमे को मैंने गुजारिश की है, मैंने कहा ये बड़ा संजीदा मामला है, 3 इशू, जमीन के, गंदम का, टैक्स का इशू, कौम को एक साथ बैठना चाहिए। मैं दावत देता हूं तमाम सियासी जमातों को, या मुझे वो बुला लें, हमें कायल करें ना, हमारी जमात को कायल करें। हमने तो अपने दौर में तमाम सियासी मजहबी जमातों से डायलॉग किया, इवन हमने एस्टेब्लिशमेंट को, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उनको भी बिठाया ताकि कल आप इनक्रोच ना करें। उन्होंने भी हमारा साथ दिया था। मैं यहाँ से स्कर्दू गया शेख जाफरी साहब के पास, इधर आगा साहब के पास हमारी टीम चली गई, काजी साहब के पास टीम चली गई, तमाम लोगों से एतमाद में लेके फिर कोई फैसला हुआ। तो फार्मूला हमारा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म कमीशन को असेंबली में ले जाके अवामी नुमाइंदों के जरिए बहस करवाई जाए, उससे पहले उस पर सेमिनार रखा जाए। कुछ लोग समझते हैं ना। अब आप मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता तो मैं भी लोगों के साथ हूं। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान में कोई लैंड नहीं है, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपके अपने नुमाइंदे हैं, जाली सही जैसे भी आए हैं, आपकी असेंबली तो हुई है। अगर आप उसके पास एक इंच जमीन का फैसला नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फिर वो करेगी क्या, किस काम के लिए है वो? मुझे बताएं, कल डीसी ने किसके फैसले पे अमल करना है? आज एक डीसी को हुक्म दिया जाता है फलां जगह तजावुजात हो रहे, जाओ, तो वो जाता है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, वो तो उस आर्डर के तहत जाता है। अब आप मुझे बताएं, अगर कल किसी अदालत में आप जाएंगे तो क्या जरगों की बात चलेगी कि नहीं, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत फैसले होंगे? तो तरमीम कराने की सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरी बदतरीन मुखालिफ गवर्नमेंट है पीटीआई, मैं इसका हामी नहीं हूं,
لیکن ایشوز پہ آپ بخوبی جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں اس طرح ایشوز آئے, ہم نے کبھی بھی جو ہے لوگوں کی جلتی پہ جو ہے تیل ڈالنے کی کوشش نہیں کی. آج بھی شہر بھر میں ہڑتال ہے, پورے گلگت بلتستان میں ہڑتال ہے, ٹیکس کا ایشو بتا رہے ہیں, زمینوں کا ایشو بتا رہے ہیں. تو بھائی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ بلائیں بٹھائیں بات کریں. وہ چل کے جائے گورنمنٹ کے لوگ جو ہے صرف بنیگالہ میں درگاہ میں حاضریاں دینے کے بجائے صبح دوپہر شام باہر جاتے ہیں, لندن سے واپس آتے ہیں, سیدھا اس کی ٹانگ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. او بھائی اپنے عوام کے سامنے آ جاؤ, ٹھیک ہے بہت کیا آپ نے بنیگالے کی غلامی, اپنا آپ کو کچھ ملنے والا ہے, اس وہاں سے جو کچھ برآمد ہو رہا ہے ویڈیوز آڈیوز کی شکل میں, یہ آپ کی جو عمل نامے کے لیے کافی. آپ آ جائیں یہاں بیٹھیں, ہر سیاسی جماعت کے دفتر چلے جائیں, آپ جائیں سیاسی جماعتوں کے پاس, جائیں مذہبی جماعتوں کے پاس, ایک قابل عمل حل نکالا جائے, ورنہ ہم 10 سال بعد بھی انہی نعروں کے اوپر کھڑے رہیں گے. آج الحمدللہ ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے مسلم لیگ نون کو, اس اسمبلی کو ہم نے اتنا امپاور کیا ہے کہ آپ کی ان زمینوں کا پورا حل آپ کی گلگت بلتستان کی اسمبلی کے پاس ہے, ہمیں دباؤ ادھر بڑھانا چاہیے. یقیناً یہ ہے کہ آپ نے سن لیا سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کا انٹرویو. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.